I'm happy to learn that 1993 batch students of BIT Bhilai are celebrating the reunion, and this reminds me of my good old days when I used to be director in the institute, and that time we found the students to be most disciplined, especially those students who were staying in the hostel had a very strong bondage of fraternity and friendship with each other, and it was an example in the city that the BIT hostlers are the students who are most responsible in their duties and have the exemplary character. And it's because of that attitude which they had possessed with the help of their colleagues and the guidance of the teachers that today these pass outs have achieved the greatest heights in their career, and when we hear about them and whenever they meet, we really feel proud of the fact that they are our students. I'm sure that I'm going to meet them on 23rd and 24th of December, and would love to see them along with their families and the children especially who might have also grown up, and would like to personally congratulate them for their spectacular achievements which they have made during their life. I wish this reunion to be a great success. Many years back, in 1989, a batch of young, spirited teens from different hues of life came to join BIT, Bhilai Institute of Technology, an institution in the town of Bhilai. While the batch had many things different, they also had a few similarities: their dreams, the energy, and yes, their anxieties too. Those 4 years of BIT laid the strongest foundation behind the success achieved by these students. 25 years later, these youngsters and now successful professionals, businessmen, politicians, academicians, and also parents are preparing to descend again to the same city and the same institution. 25 years have seen us lose some of our most respectable gurus, our dearest friends. Their memories are still afresh, their presence always missed. This audio-visual is dedicated to BIT, our teachers, and those teens tagged as 93 Tigers. Chak de BIT, chak de 93, chak de BIT, chak de 93. Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time that's do or die. Nowhere to run, nowhere to hide. This audio video is not a work of fiction but labor of love and reflects solely fun-filled moments of friends from BIT 93 batch. The pictures displayed depict the lifelong love and bonding and in no way to defame or ridicule or hurt anyone in whatsoever manner. The team herewith also apologizes for not displaying pictures of everyone due to non-availability.
ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं, और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं। ये सिर्फ मैं नहीं, ये वो सब भी कहते थे। और कहते क्या थे, करते थे। और ऐसा करते थे जो न किसी ने किया और न शायद कर पाएगा। छोटे छोटे शहरों से, खाली बोर दोपहरों से, हम तो झोला उठा के चले। बारिश कम कम लगती है, नदियाँ मध्यम लगती है, हम समंदर के अंदर चले। छोटे छोटे शहरों से, खाली बोर दोपहरों से, हम तो झोला उठा के चले। बारिश कम कम लगती है, नदियाँ मध्यम लगती है, हम समंदर के अंदर चले। ओहो हो हम चले ओए रामचंद्र रे। हम चले ओए रामचंद्र रे। धड़क 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 धुआं उड़ाए रे। धड़क 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 सीटी बजाए रे। धड़क 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 धुआं उड़ाए रे। धड़क 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 मुझे बुलाए रे। इतिहास गवाह है, उस साल केवल दो ऐतिहासिक घटनाएं घटी। पहला, बर्लिन की दीवार का गिरना, जो शायद ही किसी को याद हो। और दूसरा, हमारा इंजीनियरिंग जैसे प्रोफेशन में एडमिशन। काबिलियत उतनी जरूरी नहीं थी, मगर हमें तो इंजीनियर बनना ही था, क्योंकि 5:15 पे मेरा जन्म हुआ और 5:16 पर अब्बा ने कहा मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। हम क्या बनना चाहते थे, किसी ने पूछा ही नहीं। अंग्रेज तो 1947 में भारत छोड़कर चले गए थे, पर हमारे लिए एक ऐसी प्रथा छोड़ गए जिसका प्रभाव 1989 में भी काफी भयानक था। रैगिंग, जिसके नाम से ही आंखों में डर छा जाता था। हाथ पैर ढीले पड़ जाते और कभी कभी कपड़े भी गीले हो जाते थे। लेकिन यही रैगिंग हम सबको आपस में जोड़ने का जरिया बन गया। यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। कोई तो हो राज़दार, बेगरज तेरा हो यार, कोई तो हो राज़दार। एकेडमिक्स में हमारी सबसे पहली सफलता थी टोपोलॉजी। इसमें पीएचडी हासिल करने के बाद किसी नॉन एकेडमिक काम को शिद्दत से कैसे करना चाहिए, यह हमने एक बार फिर से सिद्ध किया था फर्स्ट ईयर में स्ट्राइक के दौरान। जुमले दुश्मन जान से, कितने बाजू इतने सर, जुमले दुश्मन जान से, हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम भी जान से। हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम भी जान से, जी जान से। तुमने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटियां रे टंग। जीटी के अलावा जब 8 घंटों तक पूरा मन लगाकर क्लास अटेंड करते तो लड़कों और लड़कियों के बीच नोक झोंक होना तो बनता ही था। किस्मत ऐसी कि जहां सिविल और मैकेनिकल में वीरानी छाई हुई थी, वहां इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहार ही बहार थी।
मैंने प्यार किया भी इसी साल रिलीज हुई। इसके गाने न सिर्फ 25 बार थिएटर में बजवाए गए, बल्कि इस मूवी ने इश्क की ऐसी वन साइडेड कहानियों को जन्म दिया जो न तो पूरी हो पाई और ना ही आज तक दफन भी हो पाई। जैसे न्यूक्लियस के चारों ओर फ्री इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं, वैसे ही कुछ हाल यहां भी था। हर एक कोई ना कोई बॉन्ड बनाने के जुगाड़ में ही लगा रहता था। भिलाई के लोकल्स के साथ डेली पंगों के कारण पुलिस वालों को हमेशा बिजी रखना हो या सीनियर्स के साथ भिड़ंत के कारण सस्पेंशन हो। सेकेंड ईयर के शुरू होते 1993 बैच का वर्चस्व बन चुका था। सिर्फ कॉलेज में ही नहीं बल्कि पूरे भिलाई दुर्ग में यह बात फैल चुकी थी कि यह बैच कुछ खास ही नहीं बल्कि टाइगर है। जब राजकुमार हिरानी ने 3 इडियट्स बनाई तो शादी के सीन का आइडिया शायद हमसे ही चुराया था। शादियों में बाराती या घराती के तौर पर गेट क्रैशिंग करना आम बात थी। उस समय अच्छे कपड़े पहन डिसेंट आउटलुक के साथ अच्छा डिनर लिया जाता था। वो दंपति आज भी अगर खुशनुमा जिंदगी गुजार रहे हैं तो उसका श्रेय कुछ हद तक हमारी दुआओं को भी जाता है, क्योंकि खाली लिफाफों में सिर्फ दुआएं ही दी जाती थी। कंबल पिटाई के बारे में हम क्या बता सकते हैं, जो उन लोगों के लिए खास तौर पर तैयार की गई जो अपने आप को कुछ अलग सिद्ध करने के लिए आतुर थे। पूरी क्लास जीटी मारे तो ये अकेले बैठकर ज्ञान बटोरे। कोई किसी को पूरी जान लगाकर पटाने की कोशिश करे तो ये जरूर उसका रायता फैलाने में कोई कसर न छोड़े। टीचरों को तो इतना मक्खन लगाएं कि हमें ऐसा लगने लगे कि हमारे हिस्से के भी सेशनल के मार्क यही ले जाएंगे और हमारे प्राण सूख जाएं। तो कंबल कुटाई ही वो आविष्कार था जो सब कुछ परफेक्ट इक्विलिब्रियम में लाने के लिए किया गया। एक्शन। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। रोज की लड़ाई का खामियाजा सुबह सुबह 4 बजे पिक्चर देखने के बाद भुगतना पड़ा। खुन्नस खाए लोकल लड़कों ने हथियारों से हमारी ऐसी कुटाई की कि सेक्टर 9 हॉस्पिटल के बिस्तर भी कम पड़ गए। नर्सों की खूबसूरती को ताकने का यह सुनहरा अवसर किसी ने जाने नहीं दिया। हालात तो ये थे कि पूरी तरह से तंदुरुस्त भी भर्ती होना चाहते थे। पूरे 4 सालों में एग्जाम्स की तैयारी शुरू होती थी डोंगरगढ़ मंदिर दर्शन से और खत्म होती थी वाइवा के साथ। वाइवा तो जैसे बाएं हाथ का खेल था। Where is the bearing? Bearing. Bearing. Sir, here. There. Wait, sir. It's coming, sir. It's coming, sir. Yeah, let it come. I'm here only. Sir. Sir, AC it changes with respect to time, and DC is constant. Sir, AC travels in a sinusoidal wave, and DC has a trapezoidal wave. And sir, AC moves forward and backward, and DC is always forward. Wait. You tell me the answer. भाव का ठेला
भाव के ठेले पर सुबह 5 बजे से ही अड्डा जमा कर बैठ जाना और सब कुछ उधारी खाते में ही डालते जाना। मुझे लगता है आज भी भाव को बहुत सी उधारी चुकाना बाकी है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। सूटा मारो सूटा लगाओ यारो, लो एक दूजे का झूठा, जुड़ जाएगा दिल जो टूटा, मारो सूटा। इन 4 सालों में न जाने कितनी प्रेम कहानियों की शुरुआत हुई। गौर फरमाया जाए कि इनमें से 99.99% तो काल्पनिक होती थी। सिर्फ शुद्ध देशी एक तरफा रोमांस। कोई अपनी मोहब्बत का इजहार करने का हिम्मत कर पहुंचता और फिर छन उसके दिल के टूटने की आवाज बॉयज हॉस्टल के कोने कोने तक सुनाई देती। फिर क्या दोस्तों का काफिला मिलके इस एक तरफा मोहब्बत का जनाजा लेकर जो निकलता तो सीधे रेलवे नाके के पास सोनाली ढाबे पर जाकर रुकता। वहां की धूल भरी उन चांदनी रातों में चारपाई पर सूटा लगाते हुए जो शायरी का सिलसिला शुरू होता, उन ट्रक ड्राइवरों की वाहवाही मानो आज तक कानों में गूंज रही हो। हमारे बैच की विदाई के समय कोई और रोया ना हो, लेकिन सोनाली ढाबे के प्रोप्राइटर भोला का चेहरा जरूर गमगीन हो गया था। उसे यकीन था कि इन बंदों वाला रोमांटिक जीन अब शायद ही किसी और बैच में हो। इस तरह की अनगिनत खट्टी मीठी यादों ने हमें 4 सालों तक एक दूसरे से जोड़े रखा और आज भी दिन जिंदा दिली से भरे थे। जिंदगी दोस्तों और दोस्ती से, दोस्ती शरारत से भरी थी और शरारत मासूमियत से। लड़ाई और कुटाई में भी प्यार था, लेकिन यह जताना बिल्कुल मना था। पढ़ाई करने वाले तो चंद ही थे, बाकी सब इस तजुर्बे से अपनी जिंदगी न मिलेगी दोबारा की यादों को संजोए रखना चाहते थे। तो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। तो पल की थी ये दिलों की दास्तां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे यार, वो रातों को जागना सुबह घर जाना कूद के दीवार, वो सिगरेट पीना गली में जाके, वो लेना दोस्तों से पैसे उधार। दम लगा लगा रे धक्का रे, दम लगा लगा रे धक्का, दम लगा
लगा रे धक्का रे दम लगा लगा रे धक्का मेरे यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है कोई तो हो राज़दार बेगरज तेरा हो यार कोई तो हो राज़दार हम रहे आना रहे कल याद आएंगे ये पल कल मिल जाए तो होगी खुश नसीबी अभी हुआ यकीन कि याद है मुझ में कहीं हुई सुबह मैं जल गया सूरज को मैं निकल गया रूबरू रोशनी रूबरू रोशनी है आज़ादियाँ आज़ादियाँ आगे ना कभी मिले 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 आज़ादियाँ आज़ादियाँ जो छीने वही जिले 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 कब तक गिने हम धड़कने दिल जैसे धड़के धड़कने दो क्यों है कोई आग दबी शोला जो भड़के भड़कने दो सारी उम्र हम मर मर के जी लिए एक पल तो अब हमें जीने दो सारी उम्र हम मर मर के जी लिए एक पल तो अब हमें जीने दो कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना हम लोगों की ठोकर में है ये जमाना जब साज है आवाज है फिर किस लिए हिचकिचाना हो गाएंगे हम अपने दिलों का तराना कोई मिल गया मेरा दिल गया क्या बताऊं यारों मैं तो हिल गया कोई मिल ही गया हो तेरे लिए मैं ज़मीन आसमान लिख दे हवा में कोई नहीं दास्तां
देखो आउट ऑफ कंट्रोल दो होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल ऑल इज वेल। और मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, और कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। तो होठ घुमा सीटी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल, और भैया ऑल इज वेल, और चाचू ऑल इज वेल, और भैया ऑल इज वेल। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हरी बाजी को जीतना जिसे आता है। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के। हे निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के। दिल क्या कहता है मेरा क्या मैं बताऊं, तुम ये समझोगे शायद मैं पागल हूँ। दिल करता है टीवी टावर पे मैं चढ़ जाऊं, चिल्ला चिल्ला के मैं ये सबसे कह दूं। रॉक ऑन है ये वक्त का इशारा, रॉक ऑन हर लम्हा पुकारा, रॉक ऑन यूं ही देखता है क्या तू, रॉक ऑन जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। देखते ही देखते कितने साल गुजर गए, समय चलता रहा, चेहरे बदलते रहे। एहसासों के मोती जो समेटे थे यादों में, वक्त के साथ न जाने कब वो सब बिखरते गए। आज उन यादों को फिर पिरोना चाहता हूं। हम सफर थे जो इन राहों पर, उन सभी से मिलना चाहता हूं। छोटे छोटे उन हसीन किस्सों से फिर एक नई कहानी बनाना चाहता हूं।